Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Welcome to the class. Let's start our chapter number 5, the fundamental unit of life. See, children, whatever things we see around us, right, whether we can classify them into two groups, that is living, नॉन लिविंग। हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी चीज़ें हमको दिखती है उसको हम दो कैटेगरी में डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। दो ही चीज़ें दुनिया में, कुछ भी देख लो आप अपने आजू बाजू, वॉट एवर थिंग्स यू सी अराउंड यू, the things which is full of life like plants, birds, animals, insects, whatever things, you can call them as living, and whatever things which are non-living, say for table, pen, chalk, duster, pen, computer, cycle, bike, car, bus, whatever things, they are considered as non-living things. अब whatever things they are, living or non-living, they are made up of some basic component, है ना। किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ था। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा दूध होता है, फिर उसके अंदर एसेंस होता है, फिर उसके अंदर कलर होता है, और उसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट या फ्रूट का पल्प, राइट, देन इट बिकम्स द फुल आइसक्रीम। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट उसका है मिल्क, राइट। उसी तरह अगर आप गोला खाते हो, राइट, तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट उसका होता है बर्फ़, यानी कि पानी। फिर उसके अंदर कलरफुल चाशनी डालते हैं, राइट, फिर ड्राई फ्रूट डालते हैं तो वो गोला कहलाता है, बट उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, बर्फ़, दैट इज़ वाटर। सो इन द सेम वे, when we look on living things as well as non-living things, living things जिस चीज़ से बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं सेल, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है हमारे आजू बाजू में, वो जिस चीज़ से बनी हुई होती है उसको हम बोलते हैं एटम, राइट। अब similarity between atom and cell is that both are having a structure. In cell we will have cell wall, nucleus and cytoplasm. जो सेल होता है, राइट, सपोज दिस इज एनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट, सो दिस बाउंड्री इज नोन एज सेल वॉल. In the center there is a nucleus, and between this nucleus and cell wall there is a cytoplasm, right. So let us study the fundamental unit of life. जो भी चीज़ें हमारे आजू बाजू में है वो जिस चीज़ से बनी हुई है, right, that is made up of cell. So basic unit of life is known as cell. जैसे हमारी कोई बिल्डिंग होती है, हमारा घर होता है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, ईंटें, सीमेंट, राइट, देन वाटर, सैंड, कंक्रीट, आयरन। लेकिन अगर मैं ये दीवार की बात करूं, राइट, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है दीवारों से, अगर मैंने ये दीवारें हटा दी तो ये ऑफिस क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा हॉल हो जाएगा। अगर दूसरी सारी बिल्डिंग दीवारें गिरा दी तो एक पूरा सा बड़ा हॉल हो जाएगा। अगर दीवारें कर देता हूँ उनके बीच में सेग्रीगेट, तो फिर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, रूम्स बन जाते हैं, क्लासरूम बन जाते हैं कि ये 6th का क्लास है, ये 7th का क्लास है, ये 8th का क्लास है। अगर सारी दीवारें हटा दूँ तो एक बड़ा सा हॉल हो जाएगा।
राइट। तो ये दीवार जिस चीज़ से बनी हुई है वो भी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट, ऐसे ईंटों के ऊपर ईंटें रखते गए तो दीवार बन गई। सो इस दीवार का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है सिंगल ईंट ब्लॉक, राइट। So in the same way, the basic constituent unit of life is known as cell. Now, how this cell was discovered? Let us see who first invented the cell theory. While examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665. Today is 2020, यानी कि roughly 450 years, 450 साल पहले. When Hooke made this chance observation through a self-designed microscope, Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This way, the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word compartment, the use of word cell to describe this unit is used till this day in biology. Let us find out about the cells. से रॉबर्ट हुक जो है वो एक सेल्फ डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट कर रहा था माइक्रोस्कोप से पुराने ज़माने में जो बॉटल होती है ना अपनी पानी पीने की, राइट, पहले तो बॉटल थी नहीं, राइट, तो ढक्कन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ढक्कन के बजाय वो लोग क्या करते थे, लकड़े का एक बुच बनाते थे, राइट, गोल शेप, और बॉटल के ऊपर फिट बिठा देते थे, राइट. सो दैट बुच और द कैप ऑफ द बॉटल वाज नोन एज कॉर्क. लेकिन जब उसने उस लकड़े के कॉर्क को, ढक्कन को देखा तो ही फाउंड आउट, जैसे हनी भी होता है ना हमारा, मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, उसमें एक मक्खी जाती है दूसरी जाती है बाजू बाजू में ही, राइट. सो उसने लकड़े में माइक्रोस्कोप में जब देखा उसने, तो उसको लकड़े के उसमें भी ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट छत्ते जैसे दिखे और उसने उसको नाम दिया सेल. सो 450 साल पहले जब उसने ये ऑब्जर्व किया और नाम दिया सेल, वो आज की तारीख में भी उसी के नाम से रेफर्ड किया जाता है बायोलॉजी में. बायोलॉजी इसे साइंस की एक ब्रांच है. साइंस अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना वो कंबाइंड साइंस आती है आपकी, ठीक है. साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे केमिकल्स को पढ़ोगे साइंस में तो केमिस्ट्री कहलाएगा, फिज़िकल लॉज को पढ़ोगे तो फिज़िक्स कहलाएगा, कीटाणुओं को, जीव को, प्लांट्स को पढ़ोगे, उसकी लाइफ प्रोसेस को पढ़ोगे, इट इज़ नोन एज बायोलॉजी. अगेन बायोलॉजी जो होती है वो दो हिस्सों में होती है, एक माइक्रोबायोलॉजी होती है, राइट, एक बॉटनी होती है जो प्लांट्स को पढ़ते हो आप. सो इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस. तो बायोलॉजी में आज देखो हम दुनिया में क्या फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जो हमको दिखता भी नहीं है. लेकिन वो वायरस कैसा है कि इंसान से इंसान को ट्रांसमिट होता है, तो उसको मारा कैसे जाए, उसको रोका कैसे जाए, उसको स्टडी करते हैं ना. तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमारे ब्लड सैंपल्स या म्यूकस सैंपल्स लेके उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किसके ऊपर डेवलप होते हैं, उसको ख़त्म कैसे किया जाए. सो दैट इज़ स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी. So let us see in deep what is this living cell. Let us take a small piece from an onion. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called the epidermis. देखो हमारी जो स्किन है, अगर इसके ऊपर कुछ खरोच लग जाती है, राइट, तो 2-3 दिन हम कुछ भी ना करें, इसके ऊपर दवाई मलहम पट्टी कुछ ना करें, तो क्या होगा, अपने आप 2 दिन बाद इसके ऊपर एक स्टिक, जो चमड़ी खुल गई थी, ब्लड थोड़ा सा निकल रहा था, राइट, 2 दिन बाद वो अपने आप चिपक जाएगी. सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ नोन एज एपिडर्मिस.
और ऐसी एक स्किन नहीं होती, स्किन के नीचे 2-3 लेयर और होती है, जिसको फर्स्ट लेयर जो बाहर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच में होती है उसको मेसोडर्मिस, और अंदर की साइड में जो स्किन होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। अगर एपिडर्मिस बाहर की स्किन के ऊपर ही कुछ खरोच लगी है तो हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है, राइट। लेकिन अगर घाव और गहरा हो गया है, स्किन के दूसरे मिडल लेयर में या अंदर के लेयर तक खरोच पहुंच गई है, राइट, देन वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, मेडिसिन्स और इवन ऑपरेशंस ऑल्सो, राइट। सो दिस इज़ एपिडर्मिस। तो ऑनियन जो होती है, हमारी प्याज जो होती है, उसका जो बल्ब होता है उसको खोल दो, ऑनियन को काटो बीच में से, और फोर्सेप पकड़ने का एक औजार होता है, उससे उसकी एक पतली सी स्किन की लेयर निकल जाएगी प्याज की। जब आप लोग आओगे मैं आपको क्लास में माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा उसको निकाल के। फिर उसको स्लाइड के ऊपर रखा जाता है, राइट, फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द इनर साइड ऑफ द ऑनियन दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास, जो एक कांच का टुकड़ा होता है जिसको बोलते हैं वॉच ग्लास, यह स्लाइड भी बोलते हैं, कंटेनिंग वाटर। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अगर जिसको स्टडी करना है तो वो खुली होगी तो हम स्टडी कर पाएंगे, एकदम पतली सी स्किन होती है उसकी, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर रख के उसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप डाल देते तो वो ऐसे ही पड़ी रहती, नहीं तो वो सिकुड़ जाएगी, तो आप उसका स्ट्रक्चर ठीक से देख नहीं पाओगे। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? अभी इसके साथ करना क्या है हमको? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of iodine solution on this piece followed by a cover slip. तो ग्लास रखो, अब स्किन इतनी पतली है जिसको हम फोर्सेप से तो निकाल लिए, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक पेंट ब्रश होता है ना, जो हमारा जो कैमल के बालों से बना हुआ होता है, एकदम बारीक सॉफ्ट होता है, राइट, उसकी मदद से उसको उठा के वहाँ रखा जाता है, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, पानी का ड्रॉप डाला जाता है, और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा गोल कवर स्लिप रखा जाता है, राइट। Now we put a drop of iodine solution on the piece followed by a cover slip. Take a care, avoid air bubbles. जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर हवा का बबल ना आ जाए, नहीं तो वो स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। While putting the cover slip with the help of a mounting needle, जिस चीज़ से कवर स्लिप उठाते हैं उसको बोलते हैं माउंटिंग नीडल। Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of the onion peel. We can observe this slide under the low power microscope followed by the high powers of a compound microscope. And what do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? अभी देखो आपके पेज नंबर फर्स्ट पेज पे ही डायग्राम 5.2 जो दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, राइट, दैट इज़ नोन एज द सेल ऑफ एन ऑनियन पील। उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको स्टडी करोगे तो हमको क्या मिलेगा? वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग द टेम्परेरी माउंट ऑफ पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज़ की स्किन को रख के व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी सी द सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? तो चाहे बड़ी स्किन लो या छोटी स्किन लो, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसको हमको ऑब्जर्व करना है। तो हमको क्या मिलता है? व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स? उसके अंदर क्या होता क्या है सेल के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। जो एक मैंने बोला मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है हेक्सागोनल शेप में, सेम उसी के टाइप के बाजू बाजू में आपको सेल्स मिलेंगे। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। वी